24 مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ریسٹورنٹ کے باہر جیسے ہی سیاہ گاڑیاں رکیں، ایک لمحے کے لیے فضا میں سنسنی پھیل گئی۔ گاڑیوں کے دروازے یکے بعد دیگرے کھلے اور پینتھر کی ٹیم بھرپور روب و دبدبے کے ساتھ باہر نکلی۔ ان کے قدموں کی دھمک جیسے ہی زمین سے ٹکرائی، ارد گرد موجود ہر شخص نے بے سختہ سانس روک لیا۔ ہلکی روشنی میں ان کی نظریں چمک رہی تھیں، جیسے شکاری شکارگاہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ نور دل بھی ان کے ساتھ تھی، سیاہ عبایا میں ملبوس، مگر چہرے پر وہی ہلکی مسکراہٹ جو ہمیشہ اس کی معصومیت کو نمایاں کرتی تھی۔ آج کا کھانا پینتھر کی طرف سے سب کے لیے تھا اور یہ ایک خاص لمحہ تھا۔ ریسٹورنٹ کا سب سے بڑا فیملی ٹیبل مخصوص کر لیا گیا تھا، جہاں سب بیٹھے تھے۔ پینتھر کی ٹیم ہمیشہ کی طرح پروقار انداز میں، جبکہ نور دل کے چہرے پر ہلکی سی حیرانی تھی۔ شاید وہ ایسی محفلوں کی عادی نہیں تھی، مگر آج سب کے درمیان خود کو تنہا بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ تو آج کی دعوت زاویار کی طرف سے، ارمغان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ویٹرز نے فوراً بہترین کھانوں سے سجی ٹرے سجا دی۔ وہ سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ویسے بھائی، اس دن بھی آپ یہی چھپا رہے تھے نا ہم سے جب آپ مسکرا رہے تھے؟ عرش نے پوچھا تھا۔ ہاں، اس سے پچھلی رات کوئی نے تو نکاح کیا تھا، زاویار نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ کیا؟ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ عرش نے اپنا نوالا مشکل سے نگلا تھا۔ بڑے ہی کوئی تیز ہو تم، ارمغان نے سکوتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، میں تیز نہیں بوائز، تم لوگ سلو ہو، زاویار نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بھائی، اچھا نہیں کیا آپ نے ویسے، عرش نے کہا تھا۔ اچھا جی، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جی بالکل زاویار، جی لٹل اینجل، زاویار نے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ ہمیں آئس کریم منگوا دینا لٹل اینجل، یہ کوئی موسم ہے آئس کریم کھانے کا؟ ہم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب، وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا منگوا دیتا ہوں، لیکن آپ تھوڑی سی کھائیں گی، زاویار نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ تو ابھی سے چوروں کے غلام ہو گئے، زوان نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر زاویار نے اسے گھورا تھا۔ اسے کہتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں، ارمغان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ شرم کرو، بڑا بھائی ہوں تم لوگوں کا، زاویار نے انہیں گھورتے ہوئے کہا تھا۔ پنیر، ایک میرے لیے بھی آئس کریم منگوا، عرش نے کہا تھا۔ جی سر۔ عرش، اس کا نام پامیر ہے، زاویار نے کہا تھا۔ میں نے بھی تو یہی کہا بھائی، عرش نے کہا تھا۔ تو نہیں سدھر سکتا۔ وہ لوگ کھانا کھا کر وہاں سے نکل چکے تھے۔ نور دل نے زاویار کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا۔ لٹل اینجل، جی، اگر اب تمہاری طبیعت خراب ہوئی نا پھر دیکھنا۔ اچھا نا زاویار، غصہ کیوں کرتے ہیں؟ لٹل اینجل غصہ نہیں کر رہا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے لمبے ہو رہے تھے، آسمان سرخی مائل ہوتا جا رہا تھا، جیسے کسی نے سورج کو دہکتے انگاروں کے بیچ قید کر دیا ہو۔ ہلکی ہلکی خنکی ہوا میں گھلنے لگی تھی۔ سڑکوں پر روشنیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور دور کہیں کسی درخت پر بیٹھے پرندے اپنی آخری سرگوشیاں کر رہے تھے۔ رفیق ذیغم کی گاڑی تیزی سے ایک سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا دن اس کے لیے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اگر آج اس نے مدد نہ مانگی تو شاید کل وہ خود بھی نہ رہے۔ گاڑی ایک قدیم حویلی کے سامنے جا کر رکی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کبھی بڑی بڑی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، جہاں فیصلے ہوتے تھے،
जहां ताकत का खेल खेला जाता था। रफीक ज़ैगम ने एक गहरी सांस ली, अपनी जैकेट दुरुस्त की और गाड़ी से बाहर निकला। जमीन पर पड़ी खुश्क पत्तियां उसके कदमों के नीचे चिरमिराईं, जैसे वो भी इसके इज़्तिराब में शरीक हों। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उसने लंबे स्तूनों पर टिकी छत को देखा, जहां मध्यम रोशनी फैली हुई थी। हॉल में बैठे कई लोग उसकी आमद पर ठहर गए। चंद लम्हों के लिए गुफ्तगू का सिलसिला मुनक्कते हुआ। वो सीधा एक भारी कुर्सी पर बैठे शख्स के करीब गया, जो बज़ाहिर लातल्की से सिगार सुलगा रहा था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, रफीक ज़ैगम की आवाज़ में कपकपाहट थी, मगर उसके चेहरे पर ज़ब्त का निकाब था। पैंथर ने मेरा सब कुछ ले लिया, मेरे बंदे भी मार दिए, वो अब मुझे भी मार डालेगा अगर मैंने कुछ ना किया तो। सामने बैठे शख्स ने सिगार के धुएं को हवा में छोड़ा और एक गहरी नज़र रफीक ज़ैगम पर डाली। तो आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए, उसकी आवाज़ में ठहराव था। मुझे हैरत है कि तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा, रफीक ज़ैगम ने दांत पीस कर कहा। मैंने सोचा था कि मैं खुद संभाल लूंगा, मगर वो एक कदम आगे ही निकलता गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे तुम्हारी ताकत, तुम्हारे बंदों, तुम्हारे हथियारों की ज़रूरत है, और तुम बदले में क्या दोगे? वो शख्स मुस्कुराया, जैसे किसी शतरंज के मोहरे को हरकत देने से पहले सोच रहा हो। रफीक ज़ैगम की आंखों में अंधेरा छा गया। जो चाहो, बस पैंथर को ख़त्म करना है, मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। बाहर शाम मज़ीद गहरी हो चुकी थी। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रहा था। वो शख्स सिगार का एक और कश लेकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर गहरी सोच में डूब गया। फिर अचानक उसने एक तवील सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर मेरी कुछ शराइत होंगी। रफीक ज़ैगम ने फौरन कहा, मुझे कोई भी शर्त मंजूर है, बस पैंथर का खात्मा चाहिए। वो शख्स मुस्कुराते हुए आगे झुका और मध्यम आवाज में बोला, तुम्हें पहले मेरी एक आजमाइश से गुजरना होगा। अगर तुम उसमें कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन अगर नाकाम रहे तो फिर तुम्हारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। रफीक ज़ैगम की आंखों में तजस्सुस और इज़्तिराब था। क्या आजमाइश है? सामने बैठे शख्स ने उंगली से किसी को इशारा किया और साए में खड़े एक आदमी ने आगे बढ़कर एक मोटी फाइल रफीक ज़ैगम के सामने रख दी। ये एक मिशन है, वो शख्स बोला। अगर तुम ये कामयाबी से मुकम्मल कर लेते हो तो तुम्हें मेरी पूरी ताकत हासिल हो जाएगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर तुम खुद जानते हो कि पैंथर के साथ साथ मैं भी तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। रफीक ज़ैगम ने फाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। बाहर की दुनिया में रात मुकम्मल तौर पर छा चुकी थी और अब सिर्फ एक फैसला बाकी था, जीत या मौत। रफीक ज़ैगम ने फाइल खोली और सफ़ात पलटने लगा। उसके चेहरे पर तनाव के आसार मज़ीद नुमायां हो गए। ये मिशन कहाँ और कब करना होगा? वो शख्स मुस्कुराया। कल रात शहर के सन्नती इलाके में एक पुरानी गोदाम में, वहाँ तुम्हारा पहला इम्तिहान होगा। ये फैसला करेगा कि तुम वाकई इस जंग के काबिल हो या नहीं। रफीक ज़ैगम ने एक गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ। हवेली के दर दीवार इस फैसले के गवाह बन चुके थे और बाहर रात का सन्नाटा मजीद गहरा हो गया था। रफीक ज़ैगम ने एक गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ। रात के गहरे सन्नाटे में वो हवेली से बाहर निकला तो ठंडी हवा ने उसके चेहरे पर तेज चुभन पैदा की। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क रही थी, मगर साथ ही एक अजीब सा इज़्तिराब भी था। ये आजमाइश आसान नहीं होगी,
लेकिन वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मान सकता था। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो अंदर बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। सड़कें सुनसान थीं। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में उसका चेहरा सख्ती और इंतकाम के जज्बात से भरा हुआ लग रहा था। वो जानता था कि ये मिशन उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। दूसरी तरफ उस हवेली में बैठा वो शख्स जो सिगार सुलगा रहा था अपने आदमियों की तरफ मुड़ा। इसे नजर में रखो, अगर वो नाकाम हो तो अगली सुबह उसकी लाश सनती इलाके के किसी गटर में पड़ी होनी चाहिए। रात की तारीकी में फैसला हो चुका था। एक खेल शुरू हो चुका था जिसमें या तो रफीक ज़ैगम की जीत थी या उसका मुकम्मल खात्मा। नूरदिल ज़ावियार के सीने पर सर रखे सो रही थी और ज़ावियार उससे ही प्यार से देख रहा था। लिटिल एंजल, अब तुम सिर्फ अपनी ही नहीं मेरी भी हो, और सिर्फ मेरी हो। ज़ावियार ने आहिस्ता से उसके गाल को चूमा था। नूरदिल ने नींद में उसकी शर्ट को सख्ती से पकड़ा था और मजीद उसके सीने में छुपी थी, लेकिन उसकी सांसों में हल्की सी बेतरतीबी थी और माथे पर हल्की सी नमी जो ज़ावियार ने वाज़िया महसूस की थी। ज़ावियार ने उसके गिर्द अपना हिसार तंग किया था। इतनी जिद्दी हो लिटिल एंजल तुम? कहा भी था कि मत खाओ आइसक्रीम, करवा ली ना अपनी तबीयत खराब। उसके लहजे में फिक्रमंदी थी। ज़ावियार ने अपने हाथ की पुश्त आहिस्ता से उसके गाल पर फेरी। वो नींद में हल्की सी किस्मसाई थी। ज़ावियार ने उसके बालों पर अपने लब रखे थे। ज़ावियार की भी कुछ देर तक आंख लग चुकी थी। सुबह हो चुकी थी। नूरदिल की आंख आज लेट खुली थी। ज़ावियार, नूरदिल ने उसके सीने से सर उठाया था। जी लिटिल एंजल। ज़ावियार, आपने हमें जगाया क्यों नहीं? लिटिल एंजल, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए। लेकिन ज़ावियार, लिटिल एंजल, कज़ा कर लेना, आप आइंदा हमें जगाएंगे। ओके, अब ये बताओ तबीयत ठीक है तुम्हारी? लेकिन मुझे नहीं लग रही। हम ठीक है ना? लिटिल एंजल, तुम्हारी आवाज़ से मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, और कल कहा भी था कि मत खाओ, लेकिन तुम कहाँ सुनती हो मेरी बात। ज़ावियार ने सख्ती से कहा था। सॉरी ना, डांट क्यों रहे हैं? तो और क्या करूं? सारी रात तुम्हारी सांसें बेतरतीब थी, मुझे परेशानी हो रही थी। सॉरी ना, वो अपना निचला होंठ पैर को मरोड़ती बोली थी। अंदर करो इसको लिटिल एंजल। नूरदिल ने अपनी नजरें झुकाई थी। इधर देखो मेरी तरफ। ज़ावियार ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया था। आइंदा तुम आइसक्रीम नहीं खाओगी, ओके? लेकिन नूरदिल ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन कुछ नहीं, जिद मत की करो। अच्छा चलो अब लेटो आराम से। लेकिन नाश्ता, आवाज ना आए मुझे तुम्हारी। सब अपना बना लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी फिक्र करो तुम। लेकिन आपके लिए, वो आहिस्ता आवाज में बोली थी। मैं हूं ना लिटिल एंजल, खुद के लिए भी बना लूंगा और तुम्हारे लिए भी। लेकिन आप क्यों? हम बना लाते हैं। उठ कर बैठी थी। खबरदार जो उठी, लेटो वापस, ज़ावियार ने गुस्से से कहा था, और वो चुपचाप लेटी थी। हिलना भी मत लिटिल एंजल, वरना वापस आकर तुम्हारे होश ठिकाने लगाऊंगा। वो कहते ही कमरे से बाहर गया था। अरमगान भाई, नाश्ता तो बना दें, ज़ुहान ने जमाई लेते हुए कहा था। खुद बना ले, मैं नहीं बना रहा। ज़ावियार किचन में गया था। भाई आज आप बनाएंगे हमारे लिए नाश्ता? ज़ुहान ने मुस्कुराते हुए कहा था। नहीं, मैं अपनी बीवी के लिए बनाने आया हूँ, उसकी तबीयत नहीं थी। ओह, तो ये बात है। अरमगान और ज़ुहान ने हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखा था। अर्श कहाँ है? ज़ावियार ने पूछा था। सो रहा है भाई, ज़ुहान ने बताया था। उसकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक होगा, अरमगान ने कहा था। अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अर्श ने कहा था। गुड मॉर्निंग, तेरी तबीयत ठीक है?
जोहान ने पूछा था। हाँ मैं तो ठीक हूँ, वो भाई पूछ रहे थे। ओह इतनी फिक्र, वो भी मेरी, अर्श ने हंसते हुए कहा था। वैसे ही पूछा था मैंने, ज़ावियार ने संजीदगी से कहा था। आज भाई नाश्ता बना रहे हैं, वो भी पहली बार। नहीं, मैं अपनी बीवी के लिए बना रहा हूँ, तुम लोग बना लो अपना। व्हाट? अर्श ने मुंह खोले कहा था और फोन निकाले उसकी वीडियो बनाई थी। मोमेंट है भाई, कैप्चर करना तो बनता है। सैयद ज़ावियार सिकंदर आज किचन में पहली बार, वो भी अपनी बीवी के लिए नाश्ता बना रहे हैं। अर्श बंद कर इसे, ज़ावियार ने दांत पीस से कहा था। देखो सब, आज माफिया किंग है किचन में। वो तीनों हंस कर लोट-पोट हो रहे थे। अर्श मैं कह रहा हूँ बंद कर, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, ज़ावियार ने गुस्से से कहा था। नाजरीन देखे तो भाई कितना अच्छा खाना बनाते हैं, लगता है प्यार सर चढ़ कर बोल रहा है, अर्श ने हंसते हुए कहा था। अर्श तूने थप्पड़ खाने हैं मुझसे, ज़ावियार ने गुस्से से कहा था। भाई हमें भी कुछ अपने हाथों का खिला दें। हाँ क्यों नहीं, थप्पड़ खिला सकता हूँ, ज़ावियार ने कहा था। हाँ क्यों नहीं, आपके हाथ से तो मैं कुछ भी खा लूँ। बहुत ही ढीठ है तू, ज़ावियार ने जाते जाते कहा था। हाँ 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 हाँ, वो तीनों हंस कर लोट पोट हुए थे। ज़ावियार नाश्ता लिए रूम में चला गया था। ये क्या था, अर्श ने कहा था। वो नूरदिल की तबीयत नहीं थी, कल तुम दोनों ने आइसक्रीम जो खाई थी, शायद इसलिए ज़ावियार तुम्हारा भी पूछ रहा था, अरमगान ने कहा था। ओह अच्छा, चलो फिर आज नाश्ता कौन बनाएगा? मैं नहीं बना रहा, अरमगान ने कहा था। ठीक है फिर, अर्श ने कहा था। किधर जा रहा है, जोहान ने पूछा था। आता हूँ, चलो लिटिल एंजल नाश्ता करो, ज़ावियार ने निवाला बनाते उसके मुंह के आगे किया था। हम खुद कर लेंगे। बहुत जिद्दी हो तुम, चिड़िया जितना तो खाती हो तुम। आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, मुंह बनाते बोली थी। नहीं जान, मैं सच बता रहा हूँ, अब जल्दी खाओ, ज़ावियार ने उसके मुंह में निवाला डाला था। बस कुछ देर बाद वो बोली थी। पूरा खाओ नूर, वरना मार खाओगी मुझसे। बस ना ज़ावियार, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, खाओ। नूरदिल ने मुश्किल से नाश्ता खत्म किया था। गुड गर्ल, ये लो मेडिसिन, उसने मुंह बनाते मेडिसिन खाई थी। और अब तुम आराम करोगी, समझी? अर्श ने ज़ाहिरा के रूम का दरवाजा नॉक किया था। गुड मॉर्निंग माफिया लेडी। गुड मॉर्निंग अर्श, नाश्ता नहीं करना तुमने? अर्श तो उससे ऐसे पूछ रहा था जैसे उससे ही बड़ी फिक्र हो। हाँ चलो, नाश्ता अभी बना नहीं है, अर्श ने मासूमियत से कहा था। अच्छा तो कौन बनाएगा, ज़ाहिरा ने पूछा था। तुम, अर्श ने कहा था। क्या? लेकिन मैं नहीं बना रही। ठीक है फिर तुम हार गई, अर्श लापरवाही से कहते आगे बढ़ा था। मैं कैसे हार गई, अर्श ने कुछ नहीं कहा था। अरे बताओ तो, कंपटीशन हो रहा है नाश्ता बनाने का, जो कम टाइम में बनाएगा वो जीत जाएगा। और आज तुम्हारी बारी थी, लेकिन तुम नहीं बना रही तो कोई बात नहीं, वो आगे बढ़ा था। मैं हार नहीं सकती, मैं बनाऊंगी, वो भी कम टाइम में, अर्श ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। चलो फिर। हाँ चलो, ज़ाहिरा ने कहा था। वो दोनों किचन में पहुंचे थे। चलो तुम बनाओ, तुम जीतोगी, ऑल द बेस्ट, अर्श ने संजीदगी से कहा था और डाइनिंग टेबल पर पहुंचा था। यार कौन बनाएगा नाश्ता, जल्दी करो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जोहान ने टेबल पर सर रख के कहा था। माफिया लेडी बना रही है, अर्श ने जैसे उनके सरों पर बम फोड़ा था। क्या? उन्होंने एक साथ कहा था। ज़ावियार भी उनके साथ आकर बैठा था। वो मानी कैसे, जोहान ने पूछा था। मैंने उसे कहा कि हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, जो कम टाइम में नाश्ता बनाएगा सबके लिए वो जीत जाएगा, और आज उसकी बारी है। क्या? बहुत तेज है तू, अरमगान ने कहा था और अर्श ने कहका लगाया था। मुझे पता चल गया है कि तू किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकता है, चाहे वो माफिया लेडी ही क्यों ना हो, जोहान ने हंसते हुए कहा था।
ऑफ कोर्स, क्योंकि आई एम द वॉल्फ। ज़ावियार उठकर रूम में चला गया था। गाइस, नाश्ता बन गया। जायरा ने टेबल पर नाश्ता लगाया था। सबने अपनी हंसी जब्त की थी। और आई एम द विनर, क्योंकि मैंने कम टाइम में नाश्ता बनाया, जायरा ने मुस्कुरा कर कहा था। उन्होंने नाश्ता करना शुरू किया था। अरे बताओ तो अर्शब, माफिया लेडी तुम विनर हो, अर्श ने नाश्ता करते हुए कहा था। वो तीनों अपनी हंसी मुश्किल से दबाए बैठे थे। जायरा ने भी अपना नाश्ता शुरू किया था। क्या नाश्ता बनाया है माफिया लेडी, तुम ही विनर हो, जुआन ने मुस्कुराहट दबाते कहा था। थैंक यू, और मुझसे कोई नहीं जीत सकता, जायरा ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर उन तीनों का बेसाख्ता कहकर गूंजा था। अरे हंस क्यों रहे हो, जायरा ने पूछा था। इसलिए कि तुमने अच्छा नाश्ता बनाया है, अरमगान ने हंसते हुए कहा था। हाँ वो तो मैं अच्छा बनाती हूँ, जायरा ने मुस्कुराते हुए कहा था। ज़ावियार बाहर जाए ना, लिटिल एंजल लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तो हमने बाहर जाकर कौन सा बंदर की तरह छलांगे लगानी है, ज़ावियार मुस्कुरा दिया था। अच्छा जान चलो आओ। नूरदिल बेड से उठी थी और ज़ावियार ने सिर बाहों में भरा था। ज़ावियार क्या कर रहे हैं जान, तुम्हें बाहर लेकर जा रहा हूँ। नहीं हमें उतारे, सब क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, उतारे ना। जिद मत करो लिटिल एंजल, वरना सबके सामने किस करूंगा, फिर ना कहना। नहीं, उसने ज़ावियार के सीने में मुंह छुपाया था। हा, अब तो करूंगा, तुम देखो तो सही। वो उसके सीने में मजीद छुपी थी। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।